The next question देखो, let P be a point on the parabola y square equal to 4ax where a is greater than 0. The normal to the parabola at P meets the x-axis at point Q. The area of triangle PFQ, where F is the focus of the parabola, is 120. If the slope m of a normal and a are both positive integer, then find the pair a comma m. So here, let P be a point on the parabola y square equal to 4ax. This is given. A is greater than 0. Normal to the parabola at P meets the x-axis at point Q. से डायग्राम देखते हैं अपन। अब ये डायग्राम देखो, यहाँ पे क्या P बी ए पॉइंट ऑन द पैराबोला y स्क्वायर इक्वल टू 4x, मतलब ये जो पैराबोला है ना, दिस वन, a इज ग्रेटर देन 0, तो ये पॉइंट P है। नॉर्मल टू द पैराबोला एट P मिड्स द x एक्सिस एट पॉइंट Q, मतलब मिड्स द x एक्सिस एट पॉइंट Q, सही है। द एरिया ऑफ ट्रायंगल PFQ, मतलब ये F पॉइंट FPFQ, वेयर F इज अ फोकस ऑफ द पैराबोला, मतलब दिस इज फोकस, is 120, मतलब area of triangle PFQ is क्या है 120. If slope m of the normal and A are both positive, m slope m of the normal and A are both, A and m are both are positive, find the value of A comma m. मतलब here we have to find the pair, है ना, find the pair A comma m. तो देखो अभी इसका सॉल्यूशन कैसे, डायग्राम क्लियर हो गया, डायग्राम कैसे, ओके। देखो अभी, let the equation of the parabola equal to y square equal to 4x. The focus of parabola f equal to a comma 0. Let P be a point on parabola. We can parameterize P as xp comma yp equal to 80 square comma 280 for some parameter t. Slope of the normal at P. First, let's find the slope of the normal to the parabola at P. Differentiating y square equal to 4x with respect to x, we get 2y dy by dx equal to 4a. So dy by dx equal to 2a by y. This is the slope of tangent at x comma y. So at P, 80 square comma 280. The slope of the tangent is 2a comma 280 equal to 1 by t. The slope of the normal at P is m equal to minus t. So given that m is the slope of the normal, since m is a positive integer given, so t must be a negative value, specifically t equal to minus m. Now we can write the coordinates of p in terms of a and m. So xp equal to a minus m square, that is equal to am square, and yp equal to 2a into minus m, that is minus 2am. तो p पॉइंट को हो गया ए एम स्क्वायर माइनस टू ए, है ना। देखो ये ए एम स्क्वायर पॉजिटिव माइनस टू एम नेगेटिव, दैट्स व्हाई दिस पॉइंट, देखो p, देखो p पॉइंट है ना, x क्या है पॉजिटिव और y क्या है निगेटिव, मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट में आता है ना वो, सही है। ए एम स्क्वायर, इक्वेशन ऑफ अ नॉर्मल एंड द पॉइंट क्यू, ये क्या हो गया, नॉर्मल एट पी, पॉइंट पी हो गया। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट पॉइंट क्यू, लेट्स फाइंड द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट पी यूजिंग द पॉइंट शेप फॉर्म, y माइनस वाई पी इक्वल टू एम एक्स माइनस एफ पी, दिस इज इक्वेशन ऑफ लाइन निकलते हैं ना अपन, तो एक्स पी वाई पी जो पॉइंट पी के लिए निकल रहे हैं। सो देखो एक्स पी वाई पी, पी पॉइंट निकाल चुके, वाई माइनस माइनस टू ए एम, एम एक्स माइनस ए एम स्क्वायर, तो वाई प्लस टू एम इक्वल टू एम एक्स माइनस ए एम स्क्वायर. The normal to the parabola at P meets the x-axis at point Q. To find Q, we set y equal to 0 in the normal equation. So 0 plus 2am k equal to m x cube minus y m am square. Since m is a positive integer, m not equal to 0. Positive integer है, मतलब m not equal to 0. So we can divide by m. So m से divide करने में 2a equal to क्या है, x cube minus am square. मतलब x cube equal to am square plus 2a. मतलब ए को कॉमन निकालो तो एम स्क्वायर प्लस टू, मतलब क्यू क्या, एक्स क्या गया, मतलब ये एक्स की वैल्यू होगी ना, ए एम स्क्वायर प्लस टू, मतलब क्यू पॉइंट क्या हो गया, ए एम स्क्वायर प्लस टू, और वाई क्या है, जीरो ही है, ये पॉइंट हो गया क्यू। क्योंकि क्यू पॉइंट मतलब मिड्स द एक्स एक्सिस हो रहा है, तो वाई इज ऑब्वियसली जीरो ही रहेगा। जैसे यहाँ पे लिखो टू फाइंड क्यू वी सेट वाई इक्वल टू जीरो, क्योंकि क्यू पॉइंट इज ऑन एक्स एक्सिस, तो उसमें वाई इक्वल टू जीरो ही रहेगा। अपने को सिर्फ एक्स पॉइंट फाइंड करना था, दैट इज ए एम स्क्वायर प्लस टू, पॉइंट क्यू निकल गया, पॉइंट पी भी निकल गया। नेक्स्ट एरिया ऑफ ट्रायंगल पी एफ क्यू, अभी इसका एरिया देखो, इसका एरिया भी गिवन दिया, वी आर गिवन दैट एफ इज अ फोकस ऑफ पैराबोला, सो एफ इक्वल टू a, 0. नाउ वी हैव द कोऑर्डिनेट्स ऑफ थ्री वर्टाइसेस ट्रायंगल पी ए एफ क्यू. P point already we have to find am square minus 2m. F point a comma 0, that is focus a comma 0 है। Q point है am square plus 2m, ये तीनों पॉइंट है, ये तीनों के तीनों ट्रायंगल है ना, पी एफ क्यू ट्रायंगल. To find the area, we can take the segment FQ as a base and FQ है ना, जैसे देखो
डायग्राम में देखो एफ क्यू, दिस इज द बेस, एज अ बेस लिया तो हाइट निकालना पड़ेगा, है ना। एरिया देखो ए कॉमा जीरो, हाँ ये तीनों पॉइंट दिए। टू फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल पी एफ क्यू वी कैन सेगमेंट एफ क्यू एज अ बेस, एफ क्यू लाइज ऑन द एक्स एक्सिस, द लेंथ ऑफ द बेस एफ क्यू कैसे निकाले, एक्स क्यू माइनस एस एफ, एस क्यू पॉइंट क्या है, ए एम स्क्वायर माइ प्लस टू, एक्स एफ पॉइंट है ए, तो ए एम स्क्वायर प्लस वन, a greater than 0, m is a positive integer, so m square plus 1 greater than 0, so fq equal to a m square plus 1. The height of the triangle is perpendicular distance from p to the x-axis. This is the absolute value of the y coordinate of p. So height h equal to mod yp equal to mod 2 minus 2a. Since a greater than 0 and m greater than 0, so h equal to 2am. So area of triangle PFQ equal to 1 by 2 into base into height. So area equal to 1 by 2 into base. So a m square plus 1 into height 2m. So area equal to क्या हो गया, a square m square plus 1. This is the area. अभी फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एम, क्योंकि अपने को पेयर निकालना है, ऑर्डर पेयर मतलब ए कॉमा एम निकालना है ना। फाइंड द वैल्यू ऑफ ए और एम। अभी इसकी वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे देखो। अभी देखो वी आर गिवन दैट एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या दिया, 120, मतलब ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 120, सही है। We are also given that a and m are positive integer, so we need to find a pair a comma m, यही अपने को फाइंड करना है। We look for integer a and m that satisfy this equation. Since a is an integer, a square must be a perfect square factor of 120. The factor of 120 equal to 2 cube into 3 into 5. The perfect square factor of 120 are 1 square equal to 1 and 2 square equal to 4. 3 square equal to 9 is not a perfect factor. So 4 square equal to 16 is not a factor. सही है। तो केस वन के हिसाब से ए स्क्वायर इक्वल टू क्या है यहाँ पे 1, जैसे यहाँ पे नहीं फैक्टर लिया ना 122 क्यूब, ए स्क्वायर इक्वल टू सपोज 1 लिया, देन ए इक्वल टू क्या हो गया 1, तो ए इज ग्रेटर देन 0, सब्स्टिट्यूट इक्वल टू 1 इनटू द इक्वेशन, मतलब यहाँ पे एम स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 120, तो एम की कौन सी वैल्यू लेना पड़ेगा 1 2 3 4 5, पूरे के पूरे पुट कर दिया, तो दिस इज इक्वल टू 2 नॉट इक्वल टू 120, एक भी वैल्यू नॉट इक्वल टू 120, पूरे के पूरे नॉट इक्वल टू 120, टेस्ट पॉजिटिव इंटीजर वैल्यूज फॉर एम। अगर m ग्रेटर देन 4 लिया तो दिस इज ग्रेटर देन 120 आता, तो उसके आगे चेक करने की जरूरत ही नहीं है। तो एफ एम इक्वल टू एम क्यू प्लस 1 इज इंक्रीजिंग फंक्शन फॉर m इज ग्रेटर देन 0, so there is a no integer solution for m when a equal to 1. Next a square equal to 2 4 पुट करेंगे, तो मतलब a square equal to 4 मतलब a equal to 2 because a is greater than 0 है। सब्स्टिट्यूट a equal to 2 into the equation, तो ये इक्वेशन क्या आ जाएगा 4m m square plus 1 equal to 120, डिवाइड बाय 4 करेंगे तो m square plus 1 equal to 30। फिर से चेक करेंगे 1 2 3 4, देखो 1 2 3 3 पे 30 आता इक्वल, मतलब सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है m equal to 3। 4 लिया तो वो ग्रेटर देन 30, उसके आगे चेक करने की जरूरत नहीं, तो m इज ग्रेटर देन 3 जैसे लिया तो m स्क्वायर प्लस 1 विल बी ग्रेटर देन 30, सो m इक्वल टू 3 इज अ यूनिक पॉजिटिव इंटीजर सॉल्यूशन फॉर m व्हेन a इक्वल टू 2, so therefore the only pair a comma m satisfying all condition is 2 comma 3. So डायग्राम के हिसाब से जैसे here is a diagram illustrated of parabola focus f point p and the normal meeting of x axis at q फॉर्मिंग ट्रायंगल पी एफ क्यू, ए इक्वल टू 2 एम इक्वल टू 3 पी इक्वल टू क्या हो जाएगा 18 कॉमा माइनस 12, एफ इक्वल टू 2 कॉमा 0 क्यू इक्वल टू 22 कॉमा 0 एंड द पैराबोला इक्वल टू वाई स्क्वायर इक्वल टू 8x, जो ए एक्स था ना 8x, ये डायग्राम आएगी उस हिसाब से। तो 2 कॉमा 3 इज अ फाइनल आंसर। हियर वी हैव टू फाइंड, अपने को क्या फाइंड करना था यहाँ पे ऑर्डर पेयर, फाइंड पेयर ए कॉमा एम, ए की वैल्यू क्या है 2, एम की वैल्यू क्या है 3, ऑप्शन में अगर 2 कॉमा 3 दिया है तो आप उसको टिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन।